So only convolution theorem of inverse Laplace transform is left. So let's quickly start with that. Any problem in the properties that we did yesterday? I mean on No, ma'am. Yes, Thursday. ma'am. ठीक है, तो convolution करते हैं फटाफट से. Now these are two functions. Convolution, as you know, जो convolution का basic definition would remain the same. It means it has to be first of all of two functions. Two functions has to be there, and अगर physical significance कोई पूछे convolution का क्या होता है, we keep one function fixed, we translate the other over other, the second function over the first function over the fixed function, and then the region of the overlap, fine, gives you the area. तो एरिया जो है ओवरलैपिंग रीजन का जो एरिया इट वुड गिव द कन्वोल्यूशन, फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वोल्यूशन थ्योरम इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म. उसकी डेफिनेशन मैंने बताई भी थी. 0 to t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू होती है, ठीक है. एंड this is when fx is kept fixed and you are translating g on the fixed function fx, ठीक है. The other definition can be the other way around. You can keep g to be fixed function and translate, move कर रहे हो किसको, f को on g. So what is this definition? The theorem, what does it says? If ft and gt are two functions such that, what is ft? Ft is L inverse of fs, and what is gt? L inverse of gs. Then what would be L inverse of fs into gs? It would be simply the convolution of ft and gt. ठीक है, जो स्टार है, you remember we denote convolution by the star. Yes, ma'am. Okay. And how do you define in integral form? If you want to find out the convolution, integral क्या solve करोगे? ये वाला integral solve करोगे या ये वाला integral solve करोगे? So f star g is the convolution of f and g. ठीक है, इसके वैसे प्रूफ ज़्यादा तो आता नहीं है इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फटाफट से एक बार प्रूफ कर लेते हैं. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एफ एस? एल ऑफ एफ टी. By definition, it is 0 to infinity ft e raised to minus st dt. Similarly, what is gs? gs में क्या होगा? It is, since it is the Laplace transform of the function gt, तो यहाँ फंक्शन की जगह आपके पास ft की जगह gt आ जाएगा बस. Yes, sir. Now we multiply these two. हमें ये चाहिए ना fs into gs, and after that we'll take the L inverse, ठीक है. तो fs ये इंटीग्रल है, gs ये इंटीग्रल है, दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, सो दैट ये जो e रेज़ टू माइनस एस यू और e रेज़ टू माइनस एस वी है, इसको कंबाइन करके ऐसे लिख रहे हैं, एफ यू जी वी सब कुछ देख लो है. अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में? u प्लस वी को टी पुट कर रहे हैं, ठीक है. तो आप इसमें कोई भी कुछ भी कर सकते हो. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं v को लिख रही हूँ. मैं बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एलिमिनेटिंग v, ठीक है. तो पहले आपके पास u एंड v स्पेस था, अब आपके पास u एंड t स्पेस हो जाएगा, राइट. तो v वुड बी रिटन एज व्हाट, t माइनस u. तो जहाँ पे भी v है उसको मैंने देख लो t माइनस u लिख दिया, एंड u प्लस v जो है वो t लिख दिया, ठीक है. एंड dv wherever I have I am writing it as dt. तो t की लिमिट्स क्या हो जाएंगी? इट वुड बी 0 टू इन्फिनिटी, और u की लिमिट्स वुड बी फ्रॉम 0 टू t. रीअरेंजिंग द टर्म्स, ठीक है. तो ये इससे कंपेयर करो, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है इट इज द फंक्शन. तो ये फंक्शन क्या है? इट इज, जैसे हम एफ टी लिखते हैं यहाँ पे, एफ टी की जगह मेरे पास ये इंटीग्रल लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है ना, 0 टू इन्फिनिटी डी टी रेज़ टू माइनस एस टी. तो ये फंक्शन बेसिकली व्हाट इज दिस फंक्शन? दैट मीन्स इट इज एल ऑफ Laplace transform of this integral. What is this integral? This is f star g. Now take
L inverse on both sides, so you get the required answer. Any problem, anybody? No, ma'am. No, ma'am. Let's quickly move on to the properties. I'll give you time to write. Please, first of all, you understand what I'm trying to say. So, properties of convolution. Convolution commutative property satisfy करती है. F star G is G star F. ये पहले भी आपने FT के लिए भी प्रूफ किया हुआ है. Exactly the similar way you are going to prove for LT. The only difference would be in the definition. Definition में वहाँ पे क्या था? यहाँ पे जैसे 0 to t है, वहाँ पे क्या था? FT के केस में क्या था? इंटीग्रल की लिमिट्स ही तो चेंज थी, बाकी तो सब कुछ सेम था ना? -t से t. Negative infinity to infinity. यस, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. याद है मैंने एक जनरल ए की फॉर्म में आपको इंटीग्रल डेफिनेशन लिखवाई थी, फिर बताया था कि ए को क्या पुट करते हैं इन केस ऑफ ए को माइनस इंफिनिटी पुट करते हैं, ए को 0 पुट करते हैं इन केस ऑफ एलटी. ठीक है? Yes, ma'am. ओके, सो इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ. एसोसिएटिविटी भी ओबे करती है. ये एज सच मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई एम डूइंग इट, बट इसमें जो है questions are more important. Wherever you'll see, you'll find the questions of convolution. बस ये होगा कि you have to find out the L inverse using, जब using convolution theorem लिखा है, that means you have to use the convolution theorem only. ठीक है? ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, ये आप लोग देख लेना एक बारी. So let's do the examples. First example, can you see? Use convolution theorem to find out. इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म जो है क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन की उठाई हुई है. ठीक है? इसी तरह से आता है. यूज convolution theorem to find out L inverse of this. इस फंक्शन को हमने मुझे लगता है कल किया था, परसों किस प्रॉपर्टी में किया था? मल्टीप्लिकेशन बाय एस वाले में. ठीक है? ठीक है, कौन मैंने बताया था इसको कन्वोल्यूशन से भी कर सकते हो. तो उसमें शायद हमने प्रूफ करा था कि हमें प्रूफ करना था 1/² + a² का होल स्क्वायर. इसको यूज करके इसकी वैल्यू दी हुई थी तो कुछ. ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को स्पेशली यहाँ लिखा है ना यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो क्या करोगे? आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में रहना चाहिए व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम. एल इनवर्स एफएस जीएस. ठीक है, तो जो भी गिवन है आपको, मतलब जो भी फाइंड करना है आपको यहाँ पे, तो इसमें एक फंक्शन एफएस है, एक फंक्शन जीएस है. सो लेट अस से दैट fs is this 1/s² + a² and gs is what? s/s² + gs. यहाँ उल्टा भी कर सकते हो. Let this also can be fs, this can be gs also. ठीक है, one and the same thing. Since you have identified what is fs and gs, you can find out ft and gt very easily. L inverse निकालना है बस. Yes, ma'am. ठीक है, बस अब उसके बाद क्या करना है? कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करो. कन्वोल्यूशन थ्योरम ये होता है, इसमें fs और gs को पुट कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में. सो इट वुड बी नाउ व्हाटएवर ये आ जाएगा ना यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना था. सो बस आपको क्या करना है? एक इंटीग्रल सॉल्व करना है. आपके पास ft है ऑलरेडी, आपने फाइंड कर लिया है 1/a sin 80. तो यहाँ पे आपको fu लगाना है, देन g ऑफ t माइनस u. तो ft की जगह fu लगाना है, तो t की जगह बस u हो जाएगा. और यहाँ पे t की जगह क्या होना पड़ेगा? gt में t माइनस u. तो a, ठीक है, तो t माइनस u. ठीक है, यहाँ ये समझ में आता है ये वाला चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अच्छा, इस क्वेश्चन में तो बेटा आप कुछ भी एफएस चूज कर लो, जीएस चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आपके पास क्योंकि साइन और कॉस की फॉर्म में आ रहा है ना। चाहे आप इसको अगर आप जीएस मतलब जीएस अगर आप इसको चूज करते, ये वाला एफएस वाले को, तो क्या होता? ठीक है, जब आप इसको अगर आप जो आपने एफएस मैंने जहाँ एफएस चूज किया है अगर आप उसको जीएस चूज करते तो क्या हो जाता? तो एफटीजीटी की ये वैल्यू बदलती है, चेंज हो जाती, बस और कुछ नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे एफ टी को मैंने बोला है एफ यू करना है, तो टी को बस यू करना होता, और यहाँ पे क्या करना होता? टी माइनस यू कर टी देना होता। माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको बहुत स्मार्टली जो है एफ एस और जी एस चूज करना पड़ेगा, वो भी आगे क्वेश्चंस में देखेंगे जिसमें। ठीक है, तो इसमें आपके पास दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो इस तरह का होता है कि हमें एफ को एक पर्टिकुलर फंक्शन ही चूज, मतलब अगर आप कर तो दोनों तरह से सकते हो बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है करना, सॉल्व करना। अगर वही स्मार्टली अगर आप उसको सिंपल वाले को एफ चूज करोगे तो आप बहुत आराम से कर पाओगे। क्वेश्चंस आएंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो बस इसको अब आगे क्या किया है मैंने, साइन ए यू कॉस ए टी माइनस यू। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन आइडेंटिटी, ए। आइडेंटिटी लगा दी। यस मैम। ठीक है, नाउ दीज आर टू डिफरेंट इंटीग्रल सेपरेटली आई एम राइटिंग इट these two and solving, put the limits। देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जैसे उसके बाद तो इंटीग्रल ही सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया, एंड सब्स्टिट्यूट पुट द लिमिट्स। यस मैम। ठीक है, ओके। लेट अस से, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। लेट अस से दिस इज द फंक्शन whose L inverse you have to find it out। तो इसमें क्या करोगे, एफ एस को मैंने क्या लिया है 1/स्क्वायर और जी एस को ये लिया है। ठीक है, आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ टी क्या हो जाएगा, इट वुड बी टी, देन जी टी वुड बी टी ई माइनस टी। ठीक है, ये समझ में आया टी ई माइनस टी कैसे आया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है मैंने? Yes, ma'am. चेंज ऑफ स्केल। यस मैम। बस उसमें क्या किया, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई किया, एफ एस जी एस की वैल्यू पुट कर दी जो आपने चूज की थी, देन एफ यू जो है क्या है, क्योंकि एफ टी मेरा टी है तो एफ यू वुड बी यू, एंड व्हाट इज जी ऑफ टी माइनस यू। ओके, अब देखो क्या किया है मैंने यहाँ पे, यूजुअली आपके दिमाग में यही आएगा ना कि एफ टी को ये चूज कर लेते हैं और जी टी को ये चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से करते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं कि तो एफ टी क्या आ जाएगा, एफ टी मेरा टी आ गया और जी टी मेरा टी माइनस ई माइनस टी आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो मैम। Now we have to use convolution theorem. Fine. Convolution theorem says that this is the convolution theorem written on the very first line of the next page, page number 18 पे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या किया है बेसिकली, this I have taken as ft, this I have taken as ft। देख लो क्या लिखा है, u e minus u,
अगर मैं एज यूजुअल जो मैं टी एफ टी को टी लेके और जी टी को टी ई माइनस टी लेके चलती, तो जब मैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में अप्लाई करूंगी, व्हाट आई हैव टू राइट, u इंटू टी माइनस यू ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस यू। लिखती कि नहीं लिखती? यस मैम। फाइन। तो वो थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है या नहीं हो जाता? एक तो एक्सपोनेंशियल में आपके पास दो टर्म्स आती हैं, फिर आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन में है उसके पास 2t माइनस यू आता। लेकिन if I am choosing this to be ft and this to be gt, क्योंकि तो ये एक्चुअली तो ये कॉम्यूटेटिव है, कॉन्वोल्यूशन तो कॉम्यूटेटिव है, तो आप अप्लाई तो कर ही सकते हो ना, ठीक है? तो व्हाट आई एम डूइंग इज एफ यू gt I am taking this, I'm sorry, ft I am taking this, so this becomes fu क्या हो जाएगा, u e raised to power minus eu जो लिखा है यहाँ पे, and my gu would be just simply t minus u. क्लियर है ये चीज कि नहीं है? मैंने कहा स्मार्टली आपको एफएस और जीएस को चूज करना है, सो दैट योर टर्म्स, योर इंटीग्रल इज नॉट बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड। देखो सॉल्व तो फर्दर आप ही को ही करना है, चाहे आप इसको एफ टी लेके करो या आप इसको एफ टी लेके करो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बिकॉज if you can keep, you have to keep one function fixed, the other should be translated, fine. So that fixed function can be ft or it can be gt, because the definition says that, ये definition से तो ये आ रहा है ना, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों को ही हम कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, बेसिकली वो जो क्वेश्चन किया है सेकंड वाले में, ये वाला डेफिनेशन यूज किया है, ठीक है कि नहीं? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. फाइन। तो एफ यू बेसिकली यहाँ एक्चुअली यहाँ डेफिनेशन जो है ना ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे t माइनस यू होना चाहिए, यहाँ पे t होना Yes, चाहिए, ma'am. डेफिनेट, ठीक है? तब हो जाएगा, या मैं इसको gt पहले ही लिख के और ऊपर ft जीटी लिखूं, नीचे एफटी। ठीक है? लेकिन तो यही तो वो होता है ना फायदा टीचर का साथ में समझाने का। जो लोग इस टाइम पे क्लास नहीं अटेंड कर रहे और सिर्फ आप लोग के नोट्स लेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, होगी कि नहीं होगी? साथ में एक्सप्लेनेशन का तो हो यही तो फायदा जाएगी होता ना। है ना, ठीक है? साथ में एक्सप्लेनेशन का तो यही फायदा होता है ना, क्लास अटेंड करने का तो यही फायदा होता है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग द सेकंड डेफिनेशन, आई एम कीपिंग नाउ gt fix and I am translating ft over gt, fine. तो definition यहाँ पे it would be ft minus u gt du, या अगर आपको यही definition लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, you'll have to first choose this as gs and this as fs, so that this becomes my ft and this becomes my gt. क्लियर है ये? आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको भी ft ले सकते हो, इसको भी gt ले सकते हो, और इसको फिक्स रख के इसको ट्रांसलेट भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, बट थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इंटीग्रल सॉल्व करना। बस वी हैव टू मेक द थिंग्स सिंपलर, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, फाइन। सो सिंस यू नो दैट there is one more definition of convolution, so you can use that also, no? ठीक है? पिछले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पिछले क्वेश्चन में both the functions were trigonometric function, तो चाहे मैं एक cos को फिक्स रखूं, sin को मूव कर रहा हूँ, या sin को फिक्स रखूं, cos को मूव कर रहा हूँ उसके sin के ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे। बट यहाँ पे you can see, आप वो भी सॉल्व करके देखना, यहाँ पे आप जो है t मतलब एफ टी जी टी माइनस यू, ये वाला भी रख के देखना। सो व्हाट यू विल गेट हियर वुड बी u t माइनस यू e रेज़ टू पावर माइनस t माइनस यू डी, उसको भी सॉल्व करके देखना,
you'll find that this is obviously much simpler to solve. All of you are getting? यस मैम। ठीक है, बस उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद तो आपने ये एक्चुअली ये दो इंटीग्रल्स हैं, दोनों को सेपरेटली आई हैव रिटन। देन व्हाट इज दिस, हाउ विल यू सॉल्व दिस? फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स या लिबनिट्स कुछ भी यूज करके कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड वाले को भी बस उसके बाद लिमिट्स पुट करना है एंड विल गेट द आंसर। हम 4 ईयर में तो पता नहीं कितने डायग्राम बनाने पड़ते थे कॉन्वोल्यूशन में। हाँ, यहाँ ये पे ऐसा डायग्राम कुछ, नहीं। हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे LT का ये कॉन्वोल्यूशन इज मच मोर सिंपलर देन यस। तो इसलिए LT का कॉन्वोल्यूशन जो है ना, वो you'll find in many क्वेश्चन पेपर्स। FT के कॉन्वोल्यूशन अभी एक दो बारी से आने लगे हैं, बट उससे पहले कभी भी नहीं आते थे। तो क्योंकि अब एक दो बारी से, हाँ एक दो बारी से क्योंकि आने लगे हैं तो हम स्किप नहीं कर सकते। कॉन्वोल्यूशन मैंने बताया ना, दोनों ही ट्रांसफॉर्म्स में वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। ठीक है, तो you want to write it down or should I just finish off whatever I want to and then you can write? ठीक है, तो Write it. you want to write it, okay. यस मैम। बस इसमें एक्चुअली आगे कुछ भी नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ एक्चुअली योर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बट ये मैंने क्या बताया कि पार्शियल फ्रैक्शंस, कभी कभी क्या होता है इनवर्स LT फाइंड करने के लिए ना पार्शियल फ्रैक्शंस भी यूज करना इज वेरी आई मीन यूजफुल। फाइन, सपोज दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें मैं इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? अब तो सारे प्रॉपर्टीज हो गई हैं आपके पास, यू नो ऑल दी प्रॉपर्टीज। कंप्लीटिंग स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको अलग से सॉल्व करेंगे। हाँ, पहले तो डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर मल्टीप्लिकेशन बाय s करके वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, यस मैम। ठीक है। लेकिन इसमें एज सच गिवन नहीं है ना, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द L इनवर्स कि कौन सी प्रॉपर्टी या कुछ, तो यू कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली इज नन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट आप जैसे इसको रिजॉल्व कर लोगे उसके बाद जो भी आप कर रहे हो उसमें आप काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज यूज करोगे, ठीक है। जैसे ये पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने रिजॉल्व कर लिया, देन आई एम गेटिंग दिस, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली वही कर रहे हो। देख लो, जो डिनोमिनेटर है दोनों टर्म्स में, यू आर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर एंड देन यू आर यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ओनली, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू डोंट, मतलब इसमें क्लास में बताया नहीं होगा तो आपको दिमाग में आ भी रहा होगा, देन ऑल्सो यू विल नॉट यूज इट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड विच कैन बी यूज्ड इन फाइंडिंग आउट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस नोट कर लेना और उसके आंसर्स नोट कर लेना, PF से करके देखना घर पे भी ओके आफ्टर मैम। माय, ठीक है। The PF you know, and there are some functions that you should know. तो ये नोट के तरह से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सपोज दिस इज द फंक्शन, इसको हम एरर फंक्शन कहते हैं, से आ जाता है। अब आपको ये समझ में नहीं आता इसको क्या लिखें, या तो आप क्या करोगे, इसको यहीं छोड़ दोगे, ठीक है। किसी क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, सपोज कुछ इंटीग्रल या का लैप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह कुछ निकालना था, और आप कहीं कहीं यहाँ पे आके इस तरह के इंटीग्रल पे आके फंस गए हो। अब नहीं पता आपको कि ये इस इंटीग्रल को कैसे प्रॉपर नेम दिया, ERFT लिखते हैं इसको, ठीक है। तो आई हैव रिटन आल्सो एरर फंक्शन। I think
So after you write this down, we are going to start with the applications of Laplace transform today itself. At least one or two applications we should do today.